Assalamu alaikum. Dear students, welcome back for our next lecture, which is about universal protein resource, or it is also called as UniProt. So UniProt is actually an abbreviation for Universal Protein Resource, which is a comprehensive resource for protein sequence and annotation data. You can find all types of proteins from all the organisms which are sequenced in this database. So this resource is maintained by a consortium or a collaboration of different institutes, including European Bioinformatics Institute, Swiss Institute of Bioinformatics, Protein Information Resource. So these three institutes are basically managing this UniProt database. So there are four different components or four different parts of this database. These parts are UniProt knowledge base, which is abbreviated as UniProt KB, UniProt reference clusters or UniReference, UniProt archive, UniPark, and proteomes. So these four sections of UniProt will be discussed in our next lectures. This is the web page for UniProt. Here we can see there are four different subsections: UniProt KB, UniRef, UniPark, and proteomes. So let's see what is the function or importance of each component. So first of all is UniProt knowledge base. So it is actually the central or main component of UniProt, and it contains curated proteins. Curated proteins means they are verified proteins. There are some experts which are managing this database. So they every submitted protein is analyzed and then stored in this database. So any scientist can submit novel proteins in this database. So there are two subsections of UniProt. One of them is SwissProt, and the other one is TREMBL. So there are several sources. I mean, from where this database retrieves its sequences. There are several sources which include DNA Data Bank of Japan, ENA GenBank, coding sequences, translations. I mean, there are nucleotides. These are nucleotide databases, and these nucleotide databases are translated into proteins, and those proteins are recorded or saved or archived in UniProt KB. The sequences of protein data bank structures, sequences from Ensemble and RefSync, data retrieved from amino acid sequences that are directly submitted to UniProt or scanned from the literature. I mean, every scientist who have identified a novel sequence, he can submit that sequence directly to UniProt. Okay, so there are some other databases or some other sources which are not included in UniProt. So these sequences or these sources include small fragments, I mean incomplete sequences, synthetic sequences. There are some scientists who synthesize novel protein or DNA sequences for their experimental use. So these synthetic sequences are not present in UniProt. Most non-germline immunoglobulins and T cell receptors, and also the patent sequences or highly overrepresented or variable sequences where they are not present in UniProt. But you can find these sequences in UniProt archive. So archive, actually we can say all the sequences submitted in UniProt database are present in UniProt archive, and analyzed or curated sequences are present in knowledge base or KB. So here is a general uh, diagram representing how different sequences from different sources are annotated in UniProt knowledge base.
So I told you that there are two subsections of UniProt knowledge base. One of them is SwissProt, and the other one is TREMDL. So, SwissProt contains high quality, manually annotated and non-redundant protein sequences. I mean, this portion contains sequences which are analyzed by experts, human experts. There are some people who are working in these institutes. So they every submitted sequences goes to these experts, and these experts they analyze these sequences. They verify their domains, and they verify their motifs. They verify their sources, and they see if there are other sequences of same type are present in the database. They compare them, and then they store those sequences in SwissProt. So manual annotations consist of analysis, comparison, and merging of all available sequences for a given protein, as well as critical review of associated experimental and predicted data. एक्सपेरिमेंटल वही डाटा होगा जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया, उसको फिर वो सीक्वेंस यहाँ पे सबमिट करवाया। लेकिन जो प्रेडिक्टेड डाटा है वो अवेलेबल सीक्वेंसेस की ट्रांसलेशन करने के बाद वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। अच्छा, यूनिप्रियोड क्रिएटर्स एक्सट्रैक्ट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिटरेचर एंड परफॉर्म न्यूमरस कंप्यूटेशनल एनालिसिस। इसी तरह अगर कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुका है तो ये साइंटिस्ट जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है वो लिटरेचर में से इंफॉर्मेशन लेके उस इंफॉर्मेशन को भी इन सीक्वेंसेस के साथ टैग कर देगा या अटैच कर देगा। तो कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी रिसर्चर अगर ये सीक्वेंस सर्च करेगा उसको यूनिप्रोट में, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। So it actually aims to provide all known relevant information about a particular protein. एक particular protein से relevant जितनी भी information है, you will be able to find that information in this database. अच्छा, इसी तरह TR stands for translation, तो contains high quality computationally analyzed records enriched with automatic annotation and classification. स्विस प्लॉट में हमने देखा कि जो सीक्वेंसेस हैं वो मैनुअली क्यूरेटेड हैं, ह्यूमन बींग्स उसको क्यूरेट करते हैं। लेकिन TREMBL में वो सीक्वेंसेस हैं जो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स के थ्रू या कंप्यूटर बेस्ड प्रिडिक्शंस या क्लासिफिकेशन की बेस पे हो। तो इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन सीक्वेंसेस के लिए नहीं होता। तो ऑब्वियसली इन सीक्वेंसेस में फिर एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो TREMPL के हैं, लेकिन जो दूसरे स्विस प्लॉट वाले हैं उनमें एरर के चांसेस उतने ही कम होंगे। So these records are selected for full manual annotation and integration into SwissProt according to defined annotation priorities. उसके बाद मतलब sometimes यही जो sequences या EMPL वाले हैं इनको SwissProt में भी convert कर लिया जाता है, but obviously after manual curation by human experts. उसके बाद है यूनिप्रोट रेफरेंस क्लस्टर्स। अच्छा, जब पिछला हमने यूनिप्रोट नॉलेज बेस देखा था, नॉलेज बेस में जब भी आप सीक्वेंस सर्च करेंगे आपको एक ही सीक्वेंस मिलेगा, मतलब एक सीक्वेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक नाम लिखते हैं उससे रेलेवेंट एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन यूनिप्रोट रेफरेंस क्लस्टर्स में क्या होगा कि आप एक सीक्वेंस अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपको उस सीक्वेंस के जो होमोलॉग्स हैं या उस सीक्वेंस के सिमिलर जो अदर सीक्वेंसेस हैं इन अदर ऑर्गेनिजम्स वो भी आपको मिल जाएंगे। So this is Uniprot reference cluster, stands for or abbreviated as UniRef. It provides clustered sets of sequences from the Uniprot knowledge base and selected Unipark. यानी कि जो बाकी दो databases हैं Uniprot knowledge base और Unipark, उनमें से sequences जो similar sequences हैं उनको collect करके आपको output की form में देगा। अच्छा, इसके भी फिर 3 सब डेटाबेसेस हैं। एक उनमें से है यूनिरेफ 100, दूसरा है यूनिरेफ 90 और तीसरा है यूनिरेफ 50। यूनिरेफ 100 आपको वो सीक्वेंसेस देगा जो 100% आइडेंटिकल हैं टू योर क्यूरी सीक्वेंस जो आप सर्च करना चाहते हैं। यूनिरेफ 90 वो सीक्वेंसेस आपको आउटपुट के फॉर्म में देगा जो 90% आइडेंटिकल हैं इस सीक्वेंस के साथ। इसी तरह यूनिरेफ 50 आपको वो सीक्वेंसेस आउटपुट के फॉर्म में देगा
जो 50% आइडेंटिकल है। तो इट कैन मर्ज सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब ऑब्वियसली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का होगा, एक स्पीशीज़ से नहीं आएगा। अच्छा, तो यूनिप्रोट रेफ 100 इज़ बेस्ड ऑन ऑल यूनिप्रोट नॉलेज बेस्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब जो 100% आइडेंटिकल हैं वो नॉलेज बेस में से सर्च करके बताएगा। अच्छा, उसमें जो सीक्वेंसेस हैं वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के हैं, उनमें चिकन है, काऊ है, डॉग, फ्लाई और दूसरे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अच्छा, उसके बाद जो इज प्रोड्यूस्ड यूनिरेफ 100 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लस्टरिंग ऑल दिस रिकॉर्ड्स बाय सीक्वेंस आइडेंटिटी। हमने शायद डिस्कस किया था सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या होती है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस क्लस्टर होंगे वो सीक्वेंस आइडेंटिटी की बेस पे होंगे, सिमिलैरिटी का कोई उनमें इतना रोल शायद ना हो। अच्छा, identical sequences and subfragments are presented as a single UniRef 100 entry with the session numbers of all the merged entries। यानी कि जितने भी आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं 100%, उन सब के आपको सेशन नंबर भी मिल जाएंगे, उनके प्रोटीन सीक्वेंस भी मिल जाएंगे, और उनसे रेलिवेंट जो लिंक्स हैं जो दूसरे डाटाबेसेस के भी हैं या यूनिप्रोट नॉलेज बेस के हैं या आर्काइव रिकॉर्ड्स के, वो सारे आपको एक ही विंडो में एक ही पेज पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो यूनिरेफ 90 और 50 है वो इस यूनिरेफ 100 में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको फिर इसके साथ जो सीक्वेंसेस 90% या 50% और मोर आइडेंटिकल होंगे उनके लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनके सीक्वेंसेस शेयर किए जाएंगे। ऑब्वियसली बाद में उनको फिर रैंक कर दिया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आइडेंटिकल होंगे 90% से ज़्यादा वो पहले आ जाएगा, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, तो पूरी एक लिस्ट बना के आपको दे दी जाती है ताकि आपकी सिलेक्शन या उसका एनालिसिस आपके लिए आसान हो सके। उसके बाद है यूनी प्रोट आर्काइव। अब इसमें सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं जितने भी सबमिट करवाए जाएंगे, मतलब उसमें नॉन रिडंडेंट सीक्वेंसेस भी होंगे, रिडंडेंट सीक्वेंसेस भी होंगे, तो जितने भी सीक्वेंसेस हैं। अच्छा, UniProt is designed to capture all publicly available protein sequence data and contains all the protein sequences from main publicly available protein databases. It makes UniPark the most comprehensive, publicly accessible non-redundant protein sequence database. तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी डेटाबेस में, नॉलेज बेस और जो क्लस्टर हैं उसमें सेलेक्टेड प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं। A protein sequence may exist in several databases, मतलब एक ही प्रोटीन सीक्वेंस काफ़ी सारे डेटाबेसेस में हो सकता है, एंड मोर देन वंस, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, तो उससे उसकी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब मुख्य डेटाबेसेस में होगी। तो यूनिपार क्या करता है कि वहाँ सब सोर्सेज से सीक्वेंस लेके उसको इकट्ठा करके एक आइडेंटिफायर, मतलब यूनिक आइडेंटिफायर ऐड करके उसको यहाँ पे सेव कर लेगा। अब वो सीक्वेंसेस जो 100% आइडेंटिकल हैं पूरी लेंथ पे, उन सीक्वेंसेस को मर्ज कर लिया जाता है। मर्ज करने के बाद उनको यूनिपार्क में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, उनके मतलब फिर आइडेंटिफाइड्स ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से सेम भी रखे जा सकते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं डेटाबेसेस के। अब यूनिपार्क में जो अवेलेबल प्रोटीन डेटाबेस सीक्वेंसेस हैं वो इन तमाम डेटाबेसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उनमें डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान है, यूरोपियन लेबॉर्ट्री है, जेन बैंक है। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस हैं, उनकी ट्रांसलेशन करके वो सीक्वेंसेस यहाँ पे पेश किए जाते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंसेस फ्रॉम 3 पब्लिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। उसके बाद ensemble और बेगा जो डेटाबेसेस हैं, प्रेडिक्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस फ्रॉम वर्टिब्रेट जीनोम्स, ये वर्टिब्रेट्स के लिए है। फ्लाई बेस है जो ड्रोसोफिला का डेटाबेस है। ठीक है, वहाँ से सीक्वेंसेस लेके वो भी यूनिपार्क में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ह्यूमन एच इन्विटेशनल डेटाबेस है, ह्यूमन प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, इंटरनेशनल प्रोटीन इंडेक्स है, पेटेंट ऑफिस ऑफ यूरोप हैं, PIR PSD है, प्रोटीन डाटा बैंक है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन रिसर्च फाउंडेशन है, रेफसेक है, एनसीबीआई में हमने पढ़ा था, जो एनसीबीआई के क्यूरेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद यीस्ट का जो डेटाबेस है, सैक्रोमाइसिस जीनोम डेटाबेस है। फिर उसके बाद रेबिडोप्सिस इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, टैर, ये एक मॉडल प्लांट है ये भी, तो उसके कोडिंग सीक्वेंसेस को ट्रांसलेट करके यहाँ पे सेव कर लिया जाता है। ट्रोम है,
ये प्रेडिक्टेड प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं इसमें। यूनिक जो स्विस प्रोट है, TREMPL है, वर्म बेस है, इन तमाम के जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं उनको यूनिपार्ट के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद चौथा पोर्शन है, जो मैंने कहा था कि 4 पोर्शंस हैं, चौथा है उसमें प्रोटियोम्स हैं। तो प्रोटियोम्स में क्या होगा कि जो पूरे का पूरा प्रोटीन सेट है एक ऑर्गेनिज्म में, जितने भी प्रोटीन्स बन रही हैं एट वन टाइम, वो तमाम प्रोटीन्स इस जगह पे इकट्ठी कर दी जाती हैं अंडर वन हेडिंग या with one identifier. So a protein is the set, a proteome is the set of proteins thought to be expressed by an organism. So UniProt provides proteomes for species with completely sequenced genomes. सिर्फ उन स्पीशीज के प्रोटियोम्स होंगे जिनके जीनोम्स कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड हैं। तो वो स्पीशीज जिनके जीनोम्स अभी कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड नहीं है, उनके प्रोटियोम्स शायद यहाँ पे अवेलेबल ना हो। So some proteomes have been manually or algorithmically selected as reference proteomes, जिनके जो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यूरेट हो चुके होंगे, उन प्रोटियोम्स को रेफरेंस प्रोटियोम्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। मीन्स के बाकी जो नॉवल प्रोटियोम्स होंगे उनको कंपेयर किया जाता है इनके साथ। So they cover well studied model organisms and other organisms of interest for biomedical search and phylogeny. अच्छा, ये अब यूनिपार्क का मेन पेज यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अब आपने अगर सीक्वेंस रिट्रीव करना है कहीं से, ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे मेन पेज है उसका यूनिप्रॉड का। ये यूनिप्रॉड नॉलेज बेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी चारों की, यूनिप्रॉड नॉलेज बेस की, रेफ की, पार्क की या प्रोट्यूम्स की, तो उसमें से सिलेक्ट कर लें। अब हमने यूनिप्रॉड नॉलेज बेस में अगर सीक्वेंस सर्च करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसका नाम, फॉर एग्जांपल ATB44 है, उसको सर्च करें तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसमें आपको रिजल्ट्स को आप देखें तो फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर्स कह रहे हैं कि 7 ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो मैनुअली क्यूरेटेड हैं, यानी कि उनका ताल्लुक स्विस प्रोट से है। एक अनरिव्यूड है, बाकी और भी सीक्वेंसेस हैं। तो इनमें से हमने देख लेना है, फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, ठीक है, उसमें ये MIP44 सीक्वेंस है। इस पे क्लिक कर लें, ये उसका सेशन नंबर है। इस तरह ये वर्की प्रोटीन है, आपको हमने तो मिप सर्च किया था, तो ये जो वर्की प्रोटीन है ये समहाउ इस सीक्वेंस के साथ लिंक्ड होगी, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही होगी, इसलिए ये भी आ गया। बाकी प्रोटीन्स भी ऐसे ही। तो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस ये है MIP44, इसको इस आइडेंटिफायर पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये रिव्यूड सीक्वेंसेस के लिए जो मैनुअली क्रिएटेड है। अच्छा, तो ये आपने आइडेंटिफायर पे क्लिक करना है, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा यूनिप्रोड का, फॉर दिस आइडेंटिफायर ऑफ MIP44 फ्रॉम अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये प्रोटीन का नाम है, जीन का नाम है, ऑर्गेनिज्म का नाम है और उसका स्टेटस है कि वो मैनुअली क्यूरेटेड है या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होगी। फिर उस प्रोटीन का फंक्शन आपने पता करना है, क्या फंक्शन है उसका जो रिपोर्टेड है, वो सारे फंक्शंस उसके यहाँ पे लिखे हुए होंगे डिटेल से। फिर उसके जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसकी डिटेल आपने पूछ देखनी हो कि उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, तो वो बताएगा जी DNA बाइंडिंग डोमेन है इसमें, अमाइनो एसिड नंबर 29 से 52 तक जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उसमें DNA बाइंडिंग डोमेन है। ये एक डेटाबेस है, प्रोसाइट एक टूल कह लें, उसके ज़रिए ये प्रोडिक्ट किया गया है। STF मोटिफ है उसका। ये वाला पूरा प्रोटीन सीक्वेंस है, उसमें ये बताया गया कि ये रीजन ये वाली है फ्रॉम 29 टू 52। सिमिलरली एक और DNA बाइंडिंग डोमेन भी है इस सीक्वेंस के अंदर, वो स्टार्ट हो रही है अमाइनो एसिड नंबर 80 से लेके अमाइनो एसिड नंबर 103 तक। तो यू कैन से देयर आर 2 DNA बाइंडिंग डोमेन्स इन दिस प्रोटीन सीक्वेंस, सिंपली आपको पता चल जाएगा। फिर उसका ऑन्टोलॉजी है उसकी, मतलब उससे उसकी जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन है, ये उसके फंक्शंस हैं। डिफरेंट डेटाबेसेस की बेस पे ये भी प्रिंट किए गए हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में किस किस में वो इन्वॉल्व है। अब आपने इसको स्क्रॉल करते जाना है, नीचे चलते जाएंगे आप लोग, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। इस साइड पे हेडिंग्स हैं, मेजर हेडिंग्स है, जैसे ये फंक्शन है ये वाला, नेम्स एंड टेक्सोनॉमी इसके बाद अब आएगा। फॉर एग्जांपल ये नेम्स एंड टेक्सोनॉमी है। तो प्रोटीन मतलब अल्टरनेटिव नेम्स कौन कौन से हैं अगर उसके हैं तो मिप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 44 है, मिप रिलेटेड प्रोटीन 44 है, शॉर्ट नेम ये है, ये अदर नेम्स भी हैं इसके। अच्छा, तो फिर ये रेलेवेंट पब्लिकेशंस भी हैं जिनमें ये नाम रिपोर्टेड है। ये जीन के नेम्स कौन से हैं उसके
किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमिक आइडेंटिफायर कौन सा है अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई। फिर उसकी लाइनेज है, मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म है रेबिडोप्सिस, उसकी जीनस कौन सी है, फैमिली कौन सी है, ठीक है, ऑर्डर कौन सा है, फाइलम, और फिर एंड पे उसका जो क्या कहते हैं किंगडम वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन। और उसके प्रोट्यूम्स की डिटेल्स यहाँ पे होगी। अच्छा, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेस, ये किस डेटाबेस में से आप इसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। ये रेबिडोप्सिस के 2 डेटाबेसेस हैं, तो यहाँ से ये आइडेंटिफायर है इस जीन का इन रेबिडोप्सिस डेटाबेसेस। फिर उसके बाद सब सेलुलर लोकलाइजेशन है कि ये वाला जो जीन है, ये वाली प्रोटीन जो है, ये सेल के अंदर किस जगह पे एक्सप्रेस हो रही है। तो यू कैन सी दिस इज ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं उसके वेरियस ऑर्गेनेलीज हैं उसके, उसमें से ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस हाईलाइटेड है। ये आप मतलब मैनुअल एनोटेशन के थ्रू इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। अगर ऑटोमेटेड होता तो ब्लू होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ATP44 है वो न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स होती हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर एक्सप्रेस होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए के साथ अटैच होकर उन्होंने अपना काम करना है। अच्छा, फिर उसको स्क्रॉल करते जाए, नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे पैथोलॉजी एंड बायोटेक है। ये क्या है कि ये सेक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो जीन है, ये अगर किसी डिजीज़ में इन्वॉल्व है या इससे रिलेटेड कोई और फिनोटाइप अगर लिंक्ड है, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन देगा पैथोलॉजी एंड बायोटेक में। तो ये बता रहा है कि इट इंक्रीज डिफेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट नेक्रोपैथिक पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के अगेंस्ट प्लांट के लिए हेल्पफुल है। सैलिसिलिक एसिड है, उसको डाउन रेगुलेट करता है, मतलब ये उसके फंक्शंस हैं इन डिजीज़ रेजिस्टेंस या डिजीज़ कंट्रोल। अच्छा, फिर उसके बाद पीछे स्क्रॉल करें आप मज़ीद, तो आपको सेकंड सेक्शन पीटीएम प्रोसेसिंग आ जाएगा। पीटीएम क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, इनके प्रोटीन बनने के बाद उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो ये इसके की फीचर है, इसमें चेन्स होती हैं, फिर इसके टोटल अमाइनो एसिड्स हैं 1 से 305 तक। डिस्क्रिप्शन है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। प्रोटियोम्स जो डेटाबेसेस हैं उनमें इसके आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डेटाबेस है ये वाला, उसमें इसका आइडेंटिफायर कौन सा है। फिर इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, रूट्स में है, स्टेम्स में है, लीव्स में है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब प्लांट के मुख्तलिफ रीजन्स में ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज में हो रहा है, इंडक्शन है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी इससे एक्सप्रेशन को ज़्यादा कर देती हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन नीचे से रोल करेंगे, इंटरेक्शन क्या है कि ये प्रोटीन बाकी प्रोटीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब फिर उसका स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन का, अगर आपने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो स्क्रॉल करेंगे नीचे पेज पे, आपको उसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो 3D स्ट्रक्चर के डाटाबेसेस हैं, इनमें से एक पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक नया डाटाबेस ओपन हो गया, जहाँ पे उसने इसका 3D स्ट्रक्चर प्रपोज किया हुआ है। इसको स्टडी करना फिर बात की बात है। फिर उसकी फैमिली डोमेन्स के मतलब इन्फॉर्मेशन भी उसी पेज पे आपको मिल जाएगी, नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि 2 डोमेन्स हैं इसके अंदर, STH मिब टाइप 1 है, STH मिब टाइप 2 है। 2 किस्म की डोमेन्स हैं, कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। रिपीट है, यानी कि एक ही डोमेन एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हुई है। फाइलोजिनोमिक डेटाबेसेस कौन से हैं जिनमें इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये उसके आइडेंटिफायर्स हैं। फैमिली डोमेन डेटाबेसेस कौन से हैं, इनके प्रोटीन्स को क्लासीफाई करने के लिए जो डेटाबेसेस हैं, ये 4 इंटरप्रो है, पीफैम है, स्मार्ट है, सुपफैम है, प्रोसाइट है। तो इन तमाम डेटाबेसेस में अगर आप इस जीन की इन्फॉर्मेशन तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाले लिंक्स अवेलेबल, जस्ट इन पे क्लिक करें, इन डेटाबेसेस में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर नीचे मजीद स्क्रॉल जब आप करेंगे यू विल फाइंड इट्स सीक्वेंस। फिर आपको यहाँ पे इस प्रोटीन का सीक्वेंस भी मिल जाएगा, तो यू कैन डाउनलोड दिस सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट। इसको क्लिक कर लें तो आपके पास इसका सीक्वेंस आ जाएगा। यू वांट टू फाइंड इट्स होमोलॉग्स इन अदर ऑर्गेनिज्म, ये ब्लास्ट की ऑप्शन आपके पास है, इसको क्लिक कर लें, ब्लास्ट करें और सीक्वेंसेस फाइंड आउट कर लें इसके। फर्दर स्क्रॉल करते जाएंगे आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन है, एक साइंटिस्ट वन था, उसने इसका सीक्वेंस फाइंड आउट किया। उसने कहा जी जो पोजीशन नंबर 186 है, यानी कि अमाइनो एसिड नंबर 186 है, वहाँ पे एस है। इस तरह कोई और साइंटिस्ट था, उसने भी इसका सीक्वेंस फाइंड आउट किया,
उसने कहा जी नहीं जी अमाइनो एसिड नंबर 186 जो है वो एफ है। सिमिलरली दो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाला वेलानिन और ल्यूसीन ये कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट किया, तो मतलब ये सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस डेटाबेसिस। तो ये सारी इन सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन ही है। ये तो था कि अगर आपने नॉलेज बेस में से सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अगर क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं फॉर एग्जाम्पल अब हमने, तो यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आएगा यूनिरेफ की, उसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा ये यूनिरेफ आ गया, वहाँ पे जीन का नाम लिखें, सर्च कर लें, तो आपके पास ये तीन किस्म की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक 100% है, 90 है और 50 है। तो ये वाला सीक्वेंस एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है, ये उसका क्लस्टर आईडी है, ये क्लस्टर नेम है, ये मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसका सेशन नंबर है, ये किस ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी आइडेंटिटी कितने परसेंट है। इसी तरह दूसरा क्लस्टर है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से ये सीक्वेंसेस हैं जो इसके होमोलोग्स हैं, जो इसके साथ 90 या 90% से ज़्यादा होमोलोग्स हैं, इनकी आइडेंटिटी जिनकी ज़्यादा है, रैप्टोप्सिस थैलियाना है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर क्लस्टर नंबर 3 है, उसमें 59 सीक्वेंसेस हैं, यहाँ से आप और भी देख सकेंगे। तो ये सारे के सारे सीक्वेंसेस इस गिवन सीक्वेंस के साथ 50% या 50% से ज़्यादा आइडेंटिकल है। तो अगर आपने फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर एग्जाम्पल बनाना है, तो आप इन सीक्वेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक फाइलोजेनेटिक ट्री। ये था क्लस्टर। फिर उसके बाद पार्क है। तो पार्क में जब आप देखेंगे, आप इसमें से सीक्वेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट उसका नेम लिखें और सीक्वेंस का, तो यू विल फाइंड सेवरल सीक्वेंसेस रेलेवेंट टू दिस सीक्वेंस। फिर प्रोटियोम्स हैं, ठीक है, प्रोटियोम्स पे क्लिक करें तो जिस ऑर्गेनिज्म का आपने प्रोटियोम सर्च करना है, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये रेफरेंस प्रोटियोम्स हैं जो मैनुअली क्यूरेटेड हैं, 19,860। फिर बाकी और भी हैं, इनको सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास जो रिजल्ट्स हैं मज़ीद शॉर्ट हो जाएंगे, कम रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसको फर्दर आप स्क्रीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसमें ये प्रोटियोम की आईडी है, ये ऑर्गेनिज्म की आईडी है, ये और ठीक है, नेम है ऑर्गेनिज्म का, उसकी आईडी है, कितने प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं टोटल उसके प्रोटियोम में। ये बस को एक पैरामीटर है ये फाइंड आउट करने के लिए कि उस जीन की कितनी कॉपीज़ हैं उसके जीनोम में, कितनी दफ़ा डुप्लीकेट हो चुका है। तो बेंच मार्किंग यूनिवर्सल सिंगल कॉपी ऑर्थोलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि कोई भी अगर जीन है तो कितनी दफ़ा वो रिपीट है या उसकी कितनी कॉपीज़ हैं। फिर उसके बाद सीपीटी है, सीपीटी आपको बताएगा कि आपके पास जो जीनोम है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड है, तो कितना कम्प्लीटली सीक्वेंस, उसकी क्वालिटी कम है, क्वालिटी ज़्यादा है, तो कंप्लीट प्रोटियोम डिटेक्टर है, यू विल फाइंड। जो लो है तो इसका मतलब उसका प्रोटियोम इतने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं हुआ, हाई है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रोटियोम बड़े अच्छे तरीके से स्टडी हो चुका है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल हैव मैनी क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।